Is my voice clear? Is my voice clear to you? Are you able to hear my voice? Yes, yes. Okay. Yes, you are audible. So see, in today's session we are discussing about two main topics. The first one is your syllabus related, which is your CSS, and the second one is task completing process. Okay. And from today, your attendance will be marked from the Google form. So mention your ID, the take ID I provide you in your offer letter. Using this take ID, you have to fill your attendance. Okay. Regularly, I provide you the Google form. Mention your name and your take ID there. Okay. Okay. Now see, as we going through the HTML, you learn the basics of HTML, and I will told you that whenever we are deep dive into the CSS part, you know the extra information about the HTML, and we grab the CSS part also. Whenever we are learning the CSS, there is one thing important, which is the styles and effects. CSS stand for cascading style sheet. The word itself provide you an idea that it is a style based language. It is not the actual language, it is just a tool, or we said a kit of tools which including for styling your web pages. Like HTML is a markup language, CSS is a style language which use to style your HTML page. There are three types of CSS. Okay, first we just cover the theory part that useful for your interview round. CSS has three types, which is internal, external, and inline CSS. There are priority based. So the inline CSS has highest priority, then the internal, and then the external. For majority cases, we use the external CSS. External CSS means we manage the CSS in the another file. Okay. The inline CSS means we are merging the CSS within that particular line where we want the styles. And the internal CSS means we enter the CSS code in the same HTML file as where we type our HTML code. We see all the types in today's session. Okay. So as we learn the HTML, now we are going to learn the CSS part. Is my screen visible? Yes. Right. So open the in a previous session we built the to-do list folder, right? So open that folder. Okay, to-do list where we write the index.html code. So like we define our first page as index.html, and for the index.html we write the CSS file styles.css. ओके, द CSS इज एक्सटेंशन फॉर द CSS फाइल. जब हम CSS फाइल बनाते हैं, सो दैट टाइम वी आर यूजिंग द डॉट CSS एक्सटेंशन. मतलब जब आप डॉट CSS एक्सटेंशन लगाओगे किसी भी फाइल के नाम के बाद, मतलब ये फाइल नेम स्टाइल्स एक फाइल नेम है जो आप कुछ भी दे सकते हो, एंड डॉट CSS उसका एक्सटेंशन होगा. ओके. अभी देखिए, जब मैंने एक अलग फाइल बनाई, ओके, मतलब मेरा ये index.html है और मैंने एक अलग फाइल बनाई styles.css, तो ये हुआ मेरा एक्सटर्नल CSS का टाइप. ओके, मतलब मैंने एक अलग फाइल बनाया, एक अलग फाइल में मैं कोड लिखूंगा जो मेरे इस फाइल को इफेक्ट देगा. ओके, तो वो हो गया मेरा एक्सटर्नल CSS. तो हम देखेंगे वर्क कैसे होता है. ओके, तो पहले एक बार देख लीजिए कि हमारा जो सिर्फ HTML वाला कोड है वो कैसा दिख रहा है.
ओके, अगर आप सिर्फ HTML वाला कोड दिखोगे तो ये ऐसे नॉर्मल दिख रहा है। ओके, अभी तक हमने कोई CSS ऐड नहीं किया है, सिर्फ हमने फाइल क्रिएट की है। नाउ जब आप यहाँ पे स्टाइल्स डॉट CSS के ऊपर जाओगे तो एक यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो CSS में एक होता है आपका सिलेक्टर एंड उसका प्रॉपर्टी, ये दोनों मतलब ये दोनों काम करते हैं। ओके, तो सपोज कीजिए मुझे ये H1 को रेड कलर देना है। ओके, H1 को मुझे रेड कलर देना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा H1, जो मेरा होगा सिलेक्टर, एंड देन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे डालूंगा कलर। ओके, कलर रेड। और जैसे मैं कलर रेड डालूंगा, अभी देखिए यहाँ पे अभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, यहाँ पे तो मेरा ब्लैक ही दिख रहा है। जब मैं यहाँ पे index.html में इस H1 को चेंज करने के लिए यहाँ पे हेड में मुझे एक लिंक टैग ऐड करना पड़ेगा। लिंक रिलेशन स्टाइल शीट href स्लैश स्टाइल डॉट css, और जैसे ही मैं सेव करूंगा, ओके, द H1 टेक्स्ट कम अंडर द रेड कलर। जब आप एक्सटर्नल CSS यूज करने वाले हो तभी आपको इस टैग की जरूरत है, लिंक टैग की। अगर आप इनलाइन और इंटरनल CSS रन कर रहे हो तो आपकी इसको जरूरत नहीं है। ओके, समजलं इथपर्यंत? जेव्हा तुम्ही एक्सटर्नल CSS वापरत असताल, ओके, तब उस पर्टिकुलर चीज के लिए, मतलब एक्सटर्नल CSS को और आपके HTML को एक साथ लिंक करने के लिए आप लिंक टैग यूज करते हो। ओके, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट href और आपके CSS के फाइल का नाम, राइट। देन आप जो चीज यहाँ पे लिखोगे वो आपके HTML को इफेक्ट देगी। जैसे सपोज कीजिए अभी मेरा बॉडी का कलर व्हाइट है, अगर मैं यहाँ पे बॉडी एंड यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दूंगा तो मेरे यहाँ का भी कलर एक्वा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्लैक, ओके, तो मेरे जो वेब पेज का कलर है वो भी ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो एडिट करोगे वो आपके मेन HTML को अफेक्ट करेगा, राइट। तो हम दो तीन चीजें चेंज करेंगे। जैसे अभी H1 को हमने सिलेक्टर ऐड किया है, तो कलर मतलब उसका टेक्स्ट कलर। ओके, यहाँ पे सेव, कलर मतलब टेक्स्ट कलर। देन अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेक करना है तो मुझे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है। सपोज कीजिए बैकग्राउंड कलर ब्लरीवुड, तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लरीवुड हो गया। देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये बीच में आ जाएगा। ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देन हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन, जिसमें मैं इसके नीचे अंडरलाइन ला सकता हूँ। ओके, ये देखिए अंडरलाइन आ गया है। देन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सपोज कीजिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस, अभी देखिए यहाँ पे जो है वो अपर केस में, अगर मैं इसको लोअर केस में कर दूंगा, यहाँ पे अगर लोअर केस डाल दूंगा तो ये लोअर केस में हो जाएगा। ओके, तो अपर केस में ही अच्छा लग रहा है वो। देन आप हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन में लाइन थ्रू, मतलब वो ऐसे कट हो जाएगा। ओके, कोई चीजें होते हैं ना, जैसे आप अमेजोन पे जब आप सरफेस देखते हो तो वहां पे एक डिस्काउंटेड प्राइस होता है और एक ओरिजिनल प्राइस होता है, और ओरिजिनल के प्राइस के ऊपर ऐसा एक लाइन कट किया होता है। ओके, देन अभी H1 का तो हो गया, लेकिन ये अभी देखिए, ये आप देख रहे हो कि ऊपर थोड़ा स्पेस है, ये वाला। ओके, ये यहाँ से भी स्पेस है, यहाँ यहाँ से भी स्पेस है। ओके, तो ये होती है मार्जिन। ओके, एंड पैडिंग। जब आप इंस्पेक्ट मोड पे जाओगे और यहाँ पे आप
यहाँ पे देखोगे। ओके, एक मिनट। हाँ, अभी देखिए, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए, ये जो लाइन के बाद ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है। ओके, ये वाला। ओके, ये येलो कलर में, तो ये है इसकी पर्टिकुलर पैडिंग। तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा, जिससे ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो हम वो सीख लेंगे कैसे करते हैं। उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टार। स्टार मतलब पूरा पेज, मतलब पूरा जो मेरा HTML है। ओके, उसे यूनिवर्सल सिलेक्टर भी कहते हैं। तो उसे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो स्टार। और यहाँ पे लिखोगे आप मार्जिन 0 px एंड पैडिंग 0 px। और जैसे आप करोगे तो वो वाला साइड हट जाएगा। ओके, अगर मैं ये ना लिखता तो देखिए आपका जो मेन पेज है उसमें यहाँ पे गैप है। और जैसे मैं ये कोड रन करूंगा मेरा वो गैप चला जाएगा। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे थोड़ा स्पेस चाहिए। ओके, ये थोड़ा ज्यादा ही इसको स्टिकी लग रहा है। तो हम, ओके, पहले इसमें भी थोड़ा गैप दे देंगे, तो इसको हम पैडिंग ऐड कर देंगे। पैडिंग 25 px। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा पैडिंग इसका बढ़ रहा है। तो आप अगर इसको देखोगे, ओके, तो ये देखिए इतना इसका ओरिजिनल साइज है। और ये जो बाकी का है वो इसका पैडिंग पार्ट है। ओके, ये H1 का ओरिजिनल साइज है और इसके बाजू में आपको जो दिख रहा है वो उसका पैडिंग का ऐड किया हुआ पार्ट है। देन हम लेंगे मार्जिन डाउन, मतलब हमें नीचे मार्जिन चाहिए ना, क्योंकि हमें इसे नीचे लेना है। तो मार्जिन बॉटम 25 px। और जैसे मैं ये करूंगा तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड हो चुकी है यहाँ पे, इसके ऊपर। ओके, देन हम हमारा फॉर्म टैग लेंगे। फॉर्म टैग में भी सेम टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, ये पूरा फॉर्म टैग बीच में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्म टैग के अंदर एक इनपुट इंटर योर टास्क एंड इनपुट सबमिट टाइप बटन, ये दोनों ऐड किए थे। अभी जब जब आप अपने CSS के फाइल को एडिट करोगे तो आपका HTML फाइल एडिट हो जाएगा, ये तो आपको पता चल ही गया है। अभी देखेंगे कि इनलाइन और इंटरनल CSS वर्क कैसे करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक्सटर्नल CSS देखा। अगर मुझे इनलाइन CSS वर्क करना है तो मुझे उस लाइन के, मतलब अभी सपोज कीजिए यहाँ पे एक H3 टैग है, जहां पे मैं लिखूंगा दिस इज दी H3 टैग टेक्स्ट। ओके, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज दी H3 टैग टेक्स्ट। और मुझे इसको इनलाइन CSS ऐड करना है। ओके, तो मैं इस S3 का जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग ब्रेसेस है, ओके, इसके बीच में एक स्टाइल ऐड कर दूंगा। स्टाइल, पहला स्टाइल। एंड देन मुझे जो प्रॉपर्टी ऐड करना है, अभी मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड टेक्स्ट कलर एंड कलर रेड, ये दोनों चीजें चाहिए। तो सी, अब ये बीच में भी आ गया और इसका कलर रेड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे H3 टैग के अंदर मैंने स्टाइल प्रोवाइड किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देन सेमी कलर, फिर दूसरी मेरी प्रॉपर्टी कि भी उसका कलर होना चाहिए रेड। अभी ये जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर लाइन के लिए अप्लाई हुई है, इसीलिए उसे इनलाइन CSS कहा जाता है, जो सिर्फ एक लाइन के लिए अप्लाई हो चुकी है। ओके, कळालं इथपर्यंत? एक्सटर्नल आणि इनलाइन कळालं? Yes, correct. Oh, yes, ओके, yes. आता आपण पाहूया
अब हम देखेंगे कि इंटरनल सीएसएस कैसे यूज करते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस यूज किया, यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज किया। अगर आपको इंटरनल सीएसएस यूज करना है तो आपको यूज करना होगा स्टाइल टैग। ये स्टाइल का स्टार्ट एंड स्टाइल का एंड, और इसके बीच में आप जो कोड लिखोगे, सपोज कीजिए मुझे बॉडी सिलेक्ट करना है, बॉडी एंड बॉडी में बैकग्राउंड कलर एक्वा, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो जाएगा एक्वा। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं कलर चेंज करूंगा टू येलो एंड वो यहाँ पे अप्लाई होता जाएगा। तो इस टाइप से हम हमारा इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरनल सीएसएस, ये हो गया आपका इनलाइन सीएसएस, एंड दिस इज योर एक्सटर्नल सीएसएस। तो हमने तीनों भी पार्ट कवर कर लिए। ओके, अभी हम देखेंगे कि सीएसएस हम कैसे मेन पेज को अप्लाई करेंगे एंड कैसे वो बाकी का चेंज करेंगे। ओके, तीनही टाइप मतलब फरक कळाला तुम्हाला? हो. ओके, आता पहा आपण एक ओके, हे कोड तुमच्याकडे सेव्ह ठेवा, मी माझ्याकडून डिलीट मारतो. एकच मिनिट. ओके, आता तुमच्याकडे हा कोड राहू द्या, मी माझ्याकडून डिलीट मारतोय. तर दोनच फाईल तुम्हाला गरजेचे आहेत, index.html आणि style.css. आता पहा आपण प्रॉपर कोडिंग कसं करणार आहोत. ओके, सो आता आपण सपोज करा, मी तुम्हाला जसं ब्लॉगची साईटचा कोड सांगितला होता, तर किती जणांचा तो झालेला आहे बनून? ओके, ते ब्लॉगचा जो मी तुम्हाला कोड सांगितला होता, तर किती जणांचा झालाय बनून? ऑन प्रोसेस असेल काही जणांचा. हे पहा, जर टास्क सबमिशन तुम्ही टाइम वरती नाही केलं तर तुमच्या परफॉर्मन्स लेटर मध्ये त्या गोष्टी नोटीस केल्या जातील. ओके ओके, तर पहिल्या टास्क साठी थोडी डेडलाईन मी एक्सटेंड करतो, तर बुधवारपर्यंत तुम्ही सगळे सबमिट करताल, बरोबर? चालेल? चालेल चालेल. ओके, टास्क क्या है पहला? आपको HTML में ब्लॉग साइट बनाना है, जो ब्लॉगिंग का साइट होता है ना, तो उसमें हाँ. एक नया बार होना चाहिए जिसमें होम एंड ब्लॉग का सेक्शन होना चाहिए. देन नीचे एक आपका वेलकम टू द ब्लॉगिंग साइट और आपका नाम, उसके नीचे होना चाहिए आपका इनपुट, एंड उसके नीचे सिर्फ एक बॉक्स चाहिए. बस इतना ही प्रोजेक्ट है आपका टास्क 1. ओके, तो खूप आप सोपा आहे. ग्रुप पे भेज दो, वो कब तक डेडलाइन है आप भेज दो, वो उसी हिसाब से करते हैं. फॉर्म टॅग जर नाही यूज केलं तर जर फॉर्म टॅग यूज नाही केलं तरी इनपुट टॅग बरोबर चालतो, फक्त ते एकमेकांना मर्ज करायला अवघड जातं. ते पण दाखवतो. फक्त जर तुम्ही एक डेव्हलपर किट जर फॉलो केलं, त्यांची वे फॉलो केलं, तर एका स्पेसिफिक वेनीच आपण कोडिंग करतो. जसं आता तुमचे टेबलचे रोज आहेत, कॉलम्स आहेत, तर ते तुम्ही वेगळीकडे वापरले, तर ते आता जर HTML तुम्ही विदाउट टॅगचं जरी वापरलं तरी तो बरोबर रन करतो. पण जेव्हा तुम्ही मेन ह्याला डिप्लॉय करायला ट्राय करता, तेव्हा ते रेंडरिंग इश्यूज येतात. बाकी काही त्याचं हे नाहीये डिसएडव्हान्टेज. ठीक आहे, तर आपण आता थोडे ब्लॉक साईटच पाहूया कसं तुम्ही बनवणार आहात. ओके, आणि हा कोड मी प्रोव्हाइड करेल, फक्त तुमची क्रिएटिव्हिटी त्याच्यामध्ये ऍड करा. तर पहले येणार आपला फर्स्ट आएगा अपना HTML का टैग. ओके, जैसे हमने
देखा है कि जब भी हम कोड लिखते हैं HTML का तो पहला टैग होता है HTML, देन उसमें हेड, हेड में टाइटल, और टाइटल में हम डालेंगे दी नहीं तो ब्लॉक साइट। देन हेड के बाद, ओके, हेड के बाद बॉडी टैग, और बॉडी के अंदर हम लिखेंगे अपना H1 टैग विच इज हाय मेंबर्स वेलकम टू द ब्लॉक साइट। ओके, देन ओके, यहां तक आप भी मेरे साथ कोड कीजिए। उसके बाद हम लिखेंगे मार्क्यू टैग, और मार्क्यू के अंदर हम लिखेंगे H3 टैग, और H3 में हम लिखेंगे दिस इज द ब्लॉक साइट वेयर वी एड आवर blocks daily and manage the counts। ओके, अगर हम इसे लाइव करते हैं तो सी हाय मेंबर्स वेलकम टू द ब्लॉग साइट एंड द मार्केट है। उसके बाद हमें इमेजेस चाहिए, तो हम ब्लॉग इमेजेस, ओके, और हम यहाँ से 2-3 इमेज सेव कर लेंगे। सपोज कीजिए ये वाला अच्छा है, सेव इमेज एज, और यहाँ पे हमारा फोल्डर, और यहाँ में मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा पिक्स, और यहाँ डाउनलोड 1। देन सपोज ये वाला डाउनलोड, ओके, कौन से भी 3 रैंडम ले लेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद हमारा होगा फॉर्म टैग, ओके, हम विदाउट फॉर्म टैग एक बार देख लेंगे। इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे इसके पहले हमें चाहिए इंटर योर नेम, ओके, क्योंकि हमें यूजर का नेम भी चाहिए। BR इंटर योर ईमेल, और हमें ईमेल भी चाहिए, इनपुट टाइप ईमेल, BR, देन इंटर योर ब्लॉक टेक्स्ट, ओके, और यहाँ पे इनपुट टाइप, ओके, टेक्स्ट ही ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद BR एंड देन बटन टाइप सबमिट, यहाँ पे सबमिट यूर टेक्स्ट। अगर हम इसे देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ओके, हाई मेंबर्स एंड आवर 4 फील्ड्स, ओके। अभी यहाँ पे हम नीचे इमेजेस ऐड कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक लाइन दे देंगे HR, ओके, जो आपको एक ऐसी लाइन शो करेगा, ये वाली, एंड देन वी आर एडिंग आवर इमेजेस, तो IMG स्लैश pics and download 1, see, okay, IMG 1, then IMG slash image 2, okay, and then the third one IMG slash pics and image 3, okay, ये तीनों इमेज यहाँ पे विजिबल है, ओके। इथपर्यंत तर बेसिकच आहे, ओके। जर मीट एंड झाली तर मी परत एकदा स्टार्ट करेल, ओके। समजलं ना तुम्हाला? मीट जर एंड झाली तर मी दुसरी एक तुम्हाला लिंक शेअर करेल, त्याच्यावरून जॉईन करा, ठीक आहे। रिस्पॉन्स करा।
ओके 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 यस यस ओके ओके। अभी देखिए कि अगर हमने अभी तो ये आपको अनस्ट्रक्चर्ड लग रहा होगा, अगर हम इसे सीएसएस ऐड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हेड में जैसे मैंने आपको बोला, अगर मुझे एक्सटर्नल सीएसएस ऐड करना है तो लिंक स्लैश स्टाइल डॉट सीएसएस, ये वाली लाइन मुझे ऐड करनी होगी। यहाँ पे कमेंट कर दूंगा, ऐड दिस लाइन टू लिंक, ओके। देन यहाँ पे स्टार मेरा यूनिवर्सल सिलेक्टर, देन मेरे मार्जिन 0, ये स्टार्टिंग में लिख लीजिए हर बार, ओके। एंड पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ओके। ये 3 मेन कंपोनेंट है, हर बार आपको लिखना जरूरी है। देन बॉडी टैग, बैकग्राउंड कलर हम ले लेंगे एक्वा व्हाइट, एंटिक व्हाइट, एंड देन टेक्स्ट कलर, ओके। सबका टेक्स्ट कलर होना चाहिए ब्लैक, ओके। और ये ऐसा दिख रहा है। देन वी सिलेक्ट आवर H1 टैग एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग 25 px, ओके। टेक्स्ट अलाइन सेंटर पैडिंग 25 px, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं तो पहले फॉन्ट फैमिली देख लेंगे। फॉन्ट फैमिली मतलब जो आपका स्टाइल्स होता है, सपोज कीजिए अभी ये इसका फॉन्ट स्टाइल ऐसा है, अगर मैं फॉन्ट फैमिली में टाइम्स न्यू रोमन कर दूंगा तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ओके। देन यहाँ पे इसके नीचे हम मार्जिन दे देंगे, मार्जिन बॉटम 30 px, तो ये नीचे वाला थोड़ा मार्जिन ऐड हो गया है। इसके नीचे है मार्क्यू टैग, फॉन्ट साइज 12 px, बहुत ही छोटा हो गया, 22 px, ओके। और इसका कलर कर देंगे रेड, ओके। तो इसका कलर कर दिया रेड। इसका स्पीड थोड़ा कम है, तो इसकी स्पीड के लिए ओके, तो हम इसके स्पीड के लिए यहाँ पे आइए और यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू, अगर आप 10 कर दोगे तो वो उतने स्पीड से जाएगा, ओके। इसका स्पीड अभी बढ़ गया है। अगर आपको और स्पीड चाहिए तो यहाँ पे 20 कर दीजिए और वो उस स्पीड से जाएगा, ओके। देन हम उसके बाद भी थोड़ा स्पेस दे देंगे, एंड मार्जिन बॉटम 25 px, तो उसके नीचे भी थोड़ा स्पेस है, ओके। एंड अभी लेंगे हम हमारा इनपुट टैग, इनपुट, हर इनपुट को हम दे देंगे मार्जिन 15 px का, मतलब सब थोड़ा अलग अलग दिखेंगे, ओके। ये इनपुट टैग है, ये तीनों भी हमारे इनपुट टैग है, ओके। अगर मैं इनपुट टैग में लिख दूंगा कलर, सपोज कीजिए ब्राउन, तो मेरे तीनों भी इनपुट टैग का कलर ब्राउन हो रहा होगा। यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो वाला ब्राउन आ रहा है, ओके। बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, ओके। देन अभी मुझे सपोज कीजिए इसके ये जो टेक्स्ट है, मतलब ये टेक्स्ट का जो साइज है ये मुझे ज्यादा चाहिए, तो मुझे देना होगा पैडिंग, पैडिंग सपोज कीजिए 10 px, देन इसका साइज बढ़ रहा है, ओके। लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा है, और हम दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हाँ धनंजय, अभी देखिए, जब मैंने पिछले बार फॉर्म टैग यूज किया था और मैंने जब टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा था तो वो बीच में आ रहा था, लेकिन अभी वो अप्लाई नहीं हो रहा है, ओके। सो दैट्स वाई जब आपका एक कंटेनर आपको प्रोवाइड किया है तो उसका यूज कीजिए, ओके। अगर मैं यहाँ पे फॉर्म लिख दूंगा, ये कट करके, ओके। एंड इनर फॉर्म टैग टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में आ रहा है,
ओके। और अगर मैं इसको फॉन्ट साइज 22px, तो इसका फॉन्ट साइज 22px, एंड यहाँ पे बटन, एंड बटन का हम थोड़ा साइज चेंज कर देंगे, तो इसको भी हम पैडिंग दे देंगे, पैडिंग 10px, तो इसका साइज चेंज हो गया। देन इसको मार्जिन दे देंगे हर साइड से 25px। ओके। अभी देखिए इसका जो एज है वो रेक्टेंगुलर एज है। ओके, तो हमें इसे कर्व चाहिए, तो इसका बॉर्डर रेडियस 25px, तो ये ओके, इसका बॉर्डर रेडियस चेंज किया, तो इसका जो बॉर्डर का जो साइज है वो चेंज हो रहा है। ओके, हम उस इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखोगे इनपुट में बॉर्डर रेडियस 25px, तो वो भी चेंज होगा। ओके, स्क्वेयर ही अच्छा है, रेक्टेंगुलर ही अच्छा लग रहा है। ओके, अभी देखिए इमेज। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा img, ओके, एंड सबकी विड्थ 25px, तो देखिए ये साइज आपका चेंज हो रहा है। विड्थ मतलब उसकी जो चौड़ाई होती है वो, एंड द हाइट आप वो भी डिफाइन कर सकते हो, हाइट, हाइट सबके 100px, तो विड्थ हाइट अभी सब बराबर साइज में है। अगर मैं अगर मुझे ये तीनों एक ही सपोज कीजिए सेंटर में चाहिए, और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो होगा क्या? नहीं होगा। ओके, क्योंकि जो टेक्स्ट के लिए प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ टेक्स्ट के लिए है, एंड जो इमेज के लिए है वहां पे आपको अलग प्रॉपर्टीज देने पडेंगे। ओके, वो भी हम देखेंगे। ओके, इथंपर्यंत कळालं? हे वरचा पार्ट कळाला असेल तुम्हाला? सिंपल इझी आहे। सीएसएस आपल्याला दोन मतलब ट्यूसडे तक कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मेन मेन टॉपिक्स भी सीखने। ओके, आज फक्त हे बेसिक बेसिकच तुम्ही कव्हर करून घ्या। ओके, आज फक्त आपण ओके चालेल. हा ठीक आहे, आज फक्त आपण एवढं पाहिलंय की सीएसएस जॉईन कसं करतात, मर्ज कसं करतात, कलर कसे चेंज करतात टेक्स्टचे पॅडिंग, मार्जिन, मार्क्यू टॅग, आणि इमेजला कसं आपण अप्लाय करतो। ओके, फक्त सिलेक्टर आणि त्याचे ऍट्रिब्यूट्स पाहिले। आता उद्याच्या सेशन मध्ये आपण पाहणार आहोत आयडी क्लास आणि ड्यू सोबत कसं काय आपण वर्क करणार आहोत। ओके, ओके. हा ठीक आहे, मी एक परत एकदा लिंक शेअर करतो, त्याला जॉईन करा। ठीक आहे।